Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a charged particle of charge q and mass m moving along positive x direction with a velocity v enters a region where there is a uniform magnetic field having value b naught and it is directed along minus z axis, that is minus k cap, from x equals to 0 to x equals to d. The particle gets deflected through an angle theta from its initial path. The specific charge of the particle is option 1 given a v cos theta by bd, option 2 given a v sin theta by bd, option 3 given a v tan theta upon bd, this is v over here, and for option given है u by bd, या फिर basically we can take it as to be v by bd. ठीक, तो क्योंकि v velocity है तो ये सब v होने चाहिए. So as a key concept we need to remember, whenever charge particle is moving inside a magnetic field it experience a force. So basically हम बात करने वाले हैं key concept में force, that is a magnetic force acting on a charge particle when it enters a magnetic field. ठीक है. So let's suppose we can see कि we have a uniform magnetic field and it is inward direction, वो inwardly directed है, right. In this situation अगर हम देखें कि कोई charge particle इसके अंदर let's say positive charge है q and it is entering with some velocity v inside this. So यहाँ पे जैसे ही वो enter करेगा inside it, so it will experience a force in the upward direction. ये क्यों upward आ रहा है that we need to understand, right. एंड ये अपवर्ड ही क्यों आया, दैट ऑल थिंग वी विल डिस्कस ओवर हियर. सो जब जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें सो एफ बार विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार. सो अगर हमें फोर्स का डायरेक्शन चाहिए सो वी हैव टू डू वी बार क्रॉस बी बार, या फिर हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं. Right hand palm rule में we need to point the finger in the direction of magnetic field, that is inward, thumb in the direction of the velocity of positive charge. So right hand palm face will give the direction of force. So force इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा and along this force direction we can say कहीं ये center of circular path lie करेगा, right, ऊपर कहीं lie करेगा. And since we can see कि force is perpendicular to velocity, so it will experience a circular path. It will move in a circular path basically, right. So this is what the thing we need to remember. अब ये circular path में अगर आ रहा है so we know for a particle to be in a circular motion necessary centripetal force is required. अगर हम मान ले circular path का radius है r, so in that situation ये centripetal force provide कौन करेगा, this centripetal force is provided by this magnetic force, that is QVB. और sin थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b और v के बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री, राइट. बी इनवर्ड है, बी राइटवर्ड है, सो दोनों के बीच का एंगल 90. सो दिस विल बी द सिचुएशन. यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आएगी एम वी बाई क्यू बी. सो दिस इज द स्मॉल थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. अब इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब हम इस सिचुएशन को लेट्स से यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो ये पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर पाथ में जाता हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डी की विड्थ हमें गिवन है वो एम वी बाई क्यू बी से छोटी है. दैट मीन्स ये पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा. पहले तो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगेगी और वो कुछ तरीके से सर्कुलर पाथ में जाएगा. थोड़ा सा हम और इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से जाएगा ये. अब यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएगा, राइट. अगर हम मान ले कि ये पॉइंट का सेंटर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, सिंस हमने बात की है कि फोर्स इस लाइन पे लाई करेगी, सो हमने अगर मान लिया कि ये सेंटर है तो यहाँ से वी कैन सी, अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखाएं यहाँ पे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, इट इज डेल्टा लेट से, या फिर थीटा मान लेते हैं हम, थीटा डिफ्लेक्शन आ रहा है इसके अंदर क्योंकि हमें थीटा गिवन है डिफ्लेक्शन, राइट. सो हमसे बोला गया द पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ. इनिशियल पाथ की अगर हम बात करें सो दिस वाज इट्स इनिशियल पाथ, राइट. इससे वो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है बेसिकली. और प्रिसाइजली अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें सो ये लाइन जिससे वो बाहर निकला है उसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे हम, सो वी विल गेट द एग्जैक्ट मीन्स सिनेरियो, हमें एग्जैक्ट पता चलेगा. सो दिस विल बी द केस, ट्राई टू विजुअलाइज दिस. ये एंगल एक्चुअली में थीटा होना चाहिए, राइट. अब ये क्योंकि थीटा है सो ये भी थीटा होगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल हम कह सकते हैं. सो ये थीटा को हमें अगर कैलकुलेट करना है सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा अगेन, राइट. और अगर ये थीटा हो गया तो ये एंगल भी थीटा हो गया हमारा, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम द फिगर. जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा विल बी नथिंग बट ये हमारा रेडियस है, राइट. सो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी इट विल बी अपोजिट, दैट इज डी अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें सो हाइपोटेनियस हमारा रेडियस ही है,
रेडियस दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द रिजल्ट. अब यहाँ से हमें चाहिए स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज को हम बोलते हैं लेट्स से अल्फा, सिंस अल्फा को हम डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज से. स्पेसिफिक चार्ज होता है क्या, इट इज़ द चार्ज टू मास रेशियो, क्यू बाय एम को हम कहते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से क्यू बाय एम को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा. सो देयरफॉर साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू डी अल्फा बी अपॉन एम वी. सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एम वी साइन थीटा. या फिर हम कहें कि फ्रॉम दिस वी कैन से इट विल बी, सॉरी ये एम नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट इट विल बी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वी साइन थीटा अपॉन बी डी. सो दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.